Hello everybody, I'm Dr. Neha. In this video, I am going to talk about the major literary theorists of cultural studies. In my previous video, I have discussed about and introduced cultural study as an area of research. I have discussed the foundation of cultural studies. I have named few literary theorists, few literary terms that belong to cultural studies, and this video is the part 2 of the previous video, wherein we will be talking about the major literary theorists who propounded cultural studies, who took ahead the theories of cultural studies. These people are very important when it comes to the net point of view, and when it comes to the HPSC subjective point of view, and for the other PSCs also. And this video is also very useful for the people who are pursuing their PhDs and doing their research work having cultural studies as a baseline literary theory. इस वीडियो में क्योंकि हम इजी लैंग्वेज में अप्रोच करने वाले हैं कल्चरल स्टडीज के मेजर लिटरेरी थियरिस्ट को, एंड मेजर लिटरेरी थियरी की बात तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेजर लिटरेरी थियरीज जो कल्चरल स्टडीज के हैं वो ये हैं: रिचर्ड हॉगर्ट, स्टुअर्ट हॉल, रेमंड विलियम्स, ईपी थॉम्सन एंड स्टीफन ग्रीनब्लैट। यहाँ पर ये लिस्ट एंड नहीं होती है, यहाँ पर ग्राम्स्की, एल्थ्यूजर, फूको जैसे बहुत सारे राइटर्स को मैं ऐड ऑन कर सकती हूँ, बट बिकॉज दिस वीडियो एंड दिस वीडियो सीरीज इज बेसिकली डेडिकेटेड टू कल्चरल स्टडीज, तो उन्हीं की ही बात करेंगे जिन्होंने कल्चरल स्टडीज के एरिया को प्रपाउंड किया, डायरेक्ट किया एंड फर्दर किया। हमारे जो मेन लिटरेरी थियरिस्ट हैं कल्चरल स्टडीज के, जिन्होंने कल्चर के एक एलीट आइडिया को ट्रांसफॉर्म कर कॉमन प्लेस पर लाया है। इफ दिस in order to get more of this video, in order to get a much better understanding of this video, I suggest कि आप इससे प्रीवियस वाला इंट्रोडक्टरी वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो को व्यू करें और एक पेन और पेपर साथ में लेकर बैठे, क्योंकि मेरी अप्रोच तो सब्जेक्टिव है लेकिन मेन वर्क यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर हो रहा है। कल्चरल स्टडी क्या है, मेजर उनके की लाइनर्स क्या है, टॉपिक्स क्या है, थियरिस्ट क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज वन बाय वन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दीज लिटरेरी थियरीज। द फर्स्ट हु स्टैंड्स इन द क्यू इज रिचर्ड हॉगर्ट. Why? Because Richard Hoggart is the one who founded the Center for Contemporary Cultural Studies at University of Birmingham. See, Richard Hoggart. Here I have made this sort of flow chart ताकि कुछ प्रॉब्लम ना हो नोट डाउन करने में, आप स्टॉप करके वीडियो को लिख सकते हैं। Richard Hoggart is very important. He founded and directed CCCS at University of Birmingham. उन्होंने यूनिवर्सिटी पे सेंटर फॉर कल्चरल स्टडी स्टार्ट किया, उसे फाउंड किया और उसे डायरेक्ट किया। उसके बाद उसकी डायरेक्टरशिप गई स्टुअर्ट हॉल को। लेकिन वाई रिचर्ड हॉगर्ट is important? Richard Hoggart is important. As I have told in my previous video that the terms, the understanding of culture was elite, high culture, elite culture, popular culture, and from that point of view, from that point of thought, it is Richard Hoggart, Raymond Williams and people like E.P. Thompson who brought the discussion of literature to the ground level, to people like us and you. हमारे तक ये लेकर के आए हैं जहां पर हमने बात की कल्चर इज ऑर्डिनरी की, तो वो बात यहाँ से स्टार्ट होती है। रिचर्ड हॉगर्ट जो है, his work uses of literacy talks about the organic culture, organic working class culture. एक्चुअल में मिडिल क्लास का जो कल्चर होता है, लोअर मिडिल क्लास का जो कल्चर होता है, वो रियल कल्चर होता है। असल जो एलीट कल्चर होता है वो तो सिर्फ मनी इन द पॉकेट बेस्ड होता है। So founded and directed CCCS at University of Birmingham. He re-evaluated elite culture. His representative work is uses of literacy aspect of working class life, how the lives and times of a working class, what their culture is, how they live. According to people like Richard Hoggart, it is the true culture, because these people were against the Marxist means of culture, where the money in your pocket will derive your culture, where culture was taken to be a term that
that should come out from a rich class family or the aristocratic family. People like Richard Hoggart ये ग्राउंड लेवल पर लेकर आए, ये मैंने कहा है, और उसके बाद उनके रिप्रेजेंटेटिव वर्क में कुछ ऐसी की लाइंस हैं जो हमें बताती हैं कि कल्चर वाकई में अब ऑर्डिनरी होने वाला है. So the book came out in the year 1957. In this very work, he attacks the consumer culture, because when we understand society in terms of Marxism, it's the consumer that is very much important. Who is consuming the culture? आपका elite culture कौन consume कर रहा है? उनका क्या खुद का कोई culture नहीं है? Working class, middle class, lower middle class, don't they possess any form of culture? They just consume the culture what is being given to them. जो culture हम देख रहे हैं, जो आप भी ये बात मानते होंगे, जो मैरिजेस में, आजकल की मैरिजेस में जिन कल्चर को हम फॉलो करते हैं, वो एक्चुअली हमारा एनरूटेड कल्चर नहीं था, वो एक्चुअल में हमारा जो है एंसेस्ट्रल कल्चर नहीं था, हमने इसको एम्बेड किया है फ्रॉम द हाई एलिट कल्चर. तो यहाँ पर कंज्यूमर कल्चर की बात हो रही है. एवरीथिंग इज डिस्प्लेड इन द मॉल एंड यू आर ओवरवेल्म्ड, you are tempted to go to the mall, and because you are attracted to the mall culture, आप उस culture से attract हो रहे हैं, आप उसको consume करना चाहते हैं, but you sit back when you think about the money in your pocket. लेकिन यहाँ पर एक culture set कर दिया गया है high, tempting, elite and aristocratic culture. Next in the line is another very important theorist is Stuart Hall. ये वीडियो नेट के स्टूडेंट जरूर से जरूर देखें, HPSC के सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठने वाले स्टूडेंट्स जरूर से जरूर देखें. And when I say this, so sorry, Stuart Hall जो है वो अनदर इम्पॉर्टेंट लिटरेरी थियरिस्ट है. ही वॉज द नेक्स्ट डायरेक्टर ऑफ द स्कूल CCCS, सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज में कुछ ऐसे लिटरेरी थियरिस्ट, लिटरेरी टर्म्स एंड लिटरेरी बुक्स आई हैं जो ग्राउंड ब्रेकिंग है अपने आप में, जिन्होंने कल्चर के आइडिया को बहुत ही ज्यादा चैलेंज किया, ग्राउंड लेवल पर लेकर आया. अब तक जो कल्चर का नोशन था, ट्रेडिशन का नोशन था, उससे ब्रेक अवे किया. और स्टुअर्ट हॉल हमने HPSC की स्क्रीनिंग में भी देखा है कितने इंपॉर्टेंट है. इनके जो दो टर्म्स है, रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिटी, आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर. सो स्टुअर्ट हॉल in 1971 he became the director of CCCS. he founded the journal New Left Journal. अब उनके लिटरेरी टर्म्स की बात कर लेते हैं. अब मेरे HPSC वाले सब्जेक्ट नॉलेज वाले स्टूडेंट्स सुन लीजिए, क्वेश्चन कल्चरल थियोरी पर आता है, कल्चरल स्टडीज पर आता है, तो इस तरीके से पॉइंटर्स को अपने माइंड में रखना है और इन्हें हाईलाइट करना है. जी रिचर्ड हॉगर्ट ने ये टर्म्स दी हैं, इन ये मासिफिकेशन के अगेंस्ट थे, कंज्यूमर कल्चर के अगेंस्ट थे. हमारे स्टुअर्ट हॉल ने जो है वो कौन कौन सी टर्म्स दी हैं. इफ यू विल हाईलाइट द वर्क्स एज वेल एज द टर्म्स गिवन बाय these people, I tell you, you are going to impress the examiner very much. So स्टुअर्ट हॉल 1977 में डायरेक्टर बने, न्यू लेफ्ट जर्नल उन्होंने फाइंड करी, उन्होंने प्रोपोगेट करी, और उनका टर्म जो है, मेजर टर्म्स उनकी क्या है, इनका वर्क भी है रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उनकी जो मेजर टर्म्स है वो है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, PCCR, प्रोडक्शन, सर्कुलेशन, कंजम्पशन एंड रिप्रोडक्शन. मैसेज पहले प्रोड्यूस होता है, फिर सर्कुलेट होता है, फिर कंज्यूम होता है और फिर रिप्रोड्यूस होता है. क्या कहा था मैंने, जो कि राधिका अंबानी ने फ्लावर दुपट्टा पहना था अपने हल्दी के फंक्शन में, उस मैसेज को, उस इमेज को पहले प्रोड्यूस किया गया, फिर सर्कुलेट किया गया, सर्कुलेट करने के बाद कंज्यूम किया गया, जी रेप्लिकास बनाए गए, और उसके बाद अब उसको रिप्रोड्यूस किया जा रहा है. उसे एक एक्सेप्टेड कल्चर का पार्ट माना जा रहा है. ईच एंड एवरी ब्राइड दैट इज गोइंग टू बी ब्राइड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, शी इज वेरी मच सर्टन, अरे मैं भी ऐसा ही दुपट्टा लूंगी.
सो कल्चर आप मानेंगे नहीं, हमारी डेली लाइफ, हमारी एक्टिविटी, वे ऑफ थॉट हर चीज में है. सो उनका नेक्स्ट मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकोडिंग डिकोडिंग का मॉडल है. इसे हम रिसेप्शन थियोरी का पार्ट मानते हैं. मैसेज को कैसे एनकोड किया, प्रोड्यूस किया, और मैसेज को कैसे डीकोड किया गया. डीकोड करने का मतलब क्या है, नेगोशिएट कैसे किया, आपने मैसेज को कैसे समझा, आपने मैसेज को कैसे लिया. तो वो हमारी हो जाती है नेगोशिएशन. नेगोशिएशन डिपेंड्स अपॉन द पर्सन हु इज कंज्यूमिंग दैट थिंग, नॉट प्रोड्यूसिंग बट कंज्यूमिंग दैट थिंग. वो कंजम्पशन आपका डिपेंड करेगा, आपकी रेस क्या है, क्लास क्या है, मनी क्या है, थॉट क्या है, पोजीशन क्या है, प्लेस क्या है, डेजिग्नेशन क्या है. ईच एंड एवरीथिंग will help you in decoding of the message. Reception theory का how you receive things, how you negotiate with the things. Another important term, very important, one of my favorites. अब उसका मैंने बता दिया, PCCR. इनका देख लीजिए, RIPCR. This is the circuit of culture inspired by Walkman's player. The circuit of culture has been given by Stuart Hall. RIP, that's the representation, identity, twin terms याद रखिएगा. रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिटी स्टुअर्ट हॉल की टर्म्स है. रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिटी, production, consumption and regulation, they all form a circuit in which our culture keeps on rotating. The major work written by Stuart Hall is Representation, Cultural Representation and Signifying Practices in the year 1997. So in this video we have discussed Richard Hoggart, we have discussed the major two founders of CCCS, that is Richard Hoggart, two directors of CCCS, Richard Hoggart and Stuart Hall. And in the part 3 I will be talking about the left literary theorists and also about the major influences of cultural studies and the future of cultural studies. So stay tuned for that.